Okay, so we have discussed regression modeling, classification modeling, right? अभी ये नहीं मतलब इंडिविजुअल एल्गोरिथम यूज करें ना हम लोग, जैसे कि रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम यानी डिसीजन ट्री. अभी नाउ Yes. वी आर टॉकिंग अबाउट ensemble मॉडलिंग. इसको बोलेंगे ensemble मॉडलिंग के. इसको प्रोनाउन ENSCMBL, ensemble modeling, which is a technique of machine learning where multiple models are basically combined, okay, combined to improve the accuracy and of course the generalizability of prediction. मतलब it should be able to properly perform the prediction. तो ये मॉडलिंग में क्या करते, मतलब मल्टीपल मॉडल्स को कंबाइन करते. So we have different are there random forest is there, and gradient boosting is there. These are the different techniques of ensemble modeling. AdaBoost are there. So these are all our ensemble methods है, ये पूरे ensemble methods है. Okay, so we'll be talking random forest. अब random forest भी एक वो है, and by the name you can understand random forest, collection of trees called foliage, right? तो ये भी क्या है, decision tree algorithm पे है. तो large number of trees and then combine their prediction to make a final better prediction. तो यानी एक डिसीजन ट्री का जो प्रिडिक्शन होता, इट इज बेटर टू हैव अ मल्टीपल डिसीजन ट्री मेकिंग ए प्रिडिक्शन एंड देन यू आर कंबाइनिंग टू हैव अ फाइनल बेटर प्रिडिक्शन. तो वही कॉन्सेप्ट है, मतलब लाइक 2 इज बेटर देन 1, 3 इज बेटर देन 2, समथिंग लाइक दैट. तो इसमें हम लोग बात करेंगे रैंडम फॉरेस्ट. और ग्रेडियंट बूस्टिंग इज अनदर टेक्निक which is create a series of decision tree, each one try to improve the error of the previous one. तो अभी इसमें रैंडम फॉरेस्ट में क्या करता है, पूरों को ग्रुप करके उन्हें फाइनल ले रहा. और ग्रेडियंट बूस्टिंग में क्या कर रहा है, मतलब इट विल जनरेट वन मॉडल, ओके, एंड वट एवर द एक्यूरेसी 80%, एंड देन इट विल जनरेट नेक्स्ट 82, then it will drop 81 and then it will pick up 82. The second one is 81, it doesn't take, again 83 it will take. Okay, तो ग्रेडियंट बूस्टिंग इस तरह से काम करता है, मतलब तो it is creating a series of decision tree, okay, and each one trying to improve the error of the previous one. Or AdaBoost, later we'll talk about AdaBoost. Again, this is another method which iteratively train a sequence of method with each new model focusing on the example that previously model found difficult to classify. तो मतलब ये ने जो AdaBoost कैसा करता है, जो पहला मॉडल जो जहां पर डिफिकल्टी वो उसके ऊपर फोकस करता है, मतलब. तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, बट ये तीनों भी एक ही है, ensemble ही है. मतलब अगर आप रैंडम फॉरेस्ट बोलो, ग्रेडियंट बूस्टिंग बोलो, AdaBoost बोलो, बट दे वर्क इन ए डिफरेंट वे. the ultimate goal is to improve the final prediction. Okay, तो ensembling मॉडल कैसा काम करता? Ensembling model works by combining the prediction of multiple model to improve the accuracy and reduce overfitting. ये मेन पॉइंट है, देखिए आप, ठीक है. By using different algorithms or training data, each model may have a different strength and weaknesses. Combining them can help to capture a broader range of pattern in the data, leading to a better prediction. Okay, ये मतलब हुआ ना. So then to use an ensemble model, you typically first train a set of individual models such as a decision tree or logistic regression model, then combine their prediction use. तो generally ये तो एक random forest वगैरह एक ग्रुप है ना ये, तो दिस कैन बी बेस्ड ऑन एनी एल्गोरिथम, मोस्टली डिसीजन ट्री पे होता है, ठीक है. तो ensemble मतलब समझ गए आप, एक से ज्यादा यानी मतलब, ओके. तो कंबाइन द प्रेडिक्शन यूजिंग ए स्पेसिफिक मेथड सच एज एवरेजिंग या वोटिंग. अब मैं ये कैसा काम करता है, ये एवरेजिंग वोटिंग? तो इट टेक द एवरेज ऑफ ऑल द मॉडल और इट डज वोटिंग, एंड व्हिचएवर इज बेस्ट इट विल टेक दैट. And the final resulting ensemble model is often more accurate and robust than of the individual model on their own. ठीक है, तो मैं को एक छोटा सा एग्जांपल देने, लेट मी गिव दैट एग्जांपल. अब जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप देखिए रैंडम फॉरेस्ट, देखिए आप यहाँ पर कैसा है, मल्टीपल ट्री, ओके. तो यहाँ पर देखिए मेजॉरिटी वोटिंग का कॉन्सेप्ट है. ये इंटरनली कैसा काम करता है हम लोग इस पे बात करेंगे, मतलब इसके बारे में. तो पहले हम लोग एक सिंपल मॉडल बनाएंगे. यहाँ पर हम लोग, मैं एक पहले काम करता हूँ, I'll build a simple classifier, क्लासिफायर मॉडल बनाता हूँ मैं. उसके ऊपर हम लोग उसको कन्वर्ट करके हम रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग को करेंगे हम लोग.
तो एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे काम करेंगे हम लोग। आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग वो डेटा सेट पे काम नहीं करे, एक नया डेटा सेट लेता हूं मैं फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ओके, एक डेटा सेट है, वो हेल्थ केयर रिलेटेड है, डिजीज रिलेटेड, काइफोसिस है, काइफोसिस। तो हम लोग काम कर रहे हैं ये काइफोसिस पे, एंड देन वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ensemble मॉडल। ओके, ensemble मॉडल में हम लोग बनाएंगे रैंडम फॉरेस्ट, एंड देन नेक्स्ट विल गो फॉर ग्रेडियंट बूस्टिंग। ओके, ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो ये दो फिर एडा बूस्ट भी देखेंगे हम लोग। तो रैंडम फॉरेस्ट से बाय द नेम यू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज, राइट। एक फॉरेस्ट है मतलब रैंडमली लेना, रैंडम फॉरेस्ट का मतलब क्या है, collection of trees, right? Trees, multiple trees. Yes. So it is combining the result of all the trees to have a final better result. तो पहले हम लोग एक काम करेंगे, एक सिंपल मॉडल बनाएंगे, उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। तो हम लोग और इट इज मतलब रैंडम फॉरेस्ट में जरूरी नहीं कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ भी जाती है, बट इट इज बेटर, यू कैन से दैट। तो पहले फर्स्ट लेट मी बिल्ड अ क्लासिफायर, लेट्स बिल्ड अ क्लासिफायर मॉडल on this kyphosis data set using decision tree classifier। तो हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, import pandas as pd, so sometimes we might be requiring numpy, so better to have this libraries। और यहाँ पर हम लोग काइफोसिस एक डिजीज है यहाँ, मतलब एक काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बोल सकते हैं जो बच्चों में होती, pdd.csv। तो यहाँ पर हमारे पास फाइल है काइफोसिस। ओके, काइफोसिस.cs, सॉरी एक मिनट, ये स्पेलिंग काइफोसिस। when you look at this particular data ना, काइफोसिस का डेटा दिखे ना, just look at the data, तो you will understand that ये चिल्ड्रन में जो हमारा जो बच्चों का बैक रहता ना, जो पीठ कमर जो बोलते हैं बैक, तो वो जो कमर झुक जाती है ना, कर्वेचर हो जाता है ना, उसका प्रॉब्लम है ये। तो ये बच्चों में होता है। अब ये एज, ये क्या है मालूम, एज इन नंबर है ना, प्लीज डोंट गेट यहाँ पे जो एज आ रहा ना, एज इन मंथ्स है, सॉरी एज इन मंथ्स है। तो बच्चे में तो अगर आप इस तरह से देखें ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको, अगर ये कोसे बच्चे देखना है ना, तो काइफोसिस में आप जैसा कि आप ये एक कॉलम का नाम है, इसमें काइफोसिस है ना, काइफोसिस, सॉरी, तो ये कॉलम ले लो आप, काइफोसिस। और दूसरा कॉलम अगर हम लेते, ये क्या है, एज। मैं एज को आई थिंक यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, एज विल ट्राई टू से सर वो मंथ ईयर में नहीं होते कन्वर्ट? हाँ कर सकते हैं ना, एक मिनट। अच्छा हम लोग एज को देखेंगे, मैंने स्पेलिंग यार की है। सर वो काइफोसिस अंडरस्कोर डीएफ देना पड़ेगा। आई एम सॉरी, ठीक है, डीएफ। आप दो, इसको क्या कर सकते हैं मालूम, डिवाइडेड बाई वो मंथ आ रहा ना, तो 12 दे दो ना, 12। ये देखिए ये ईयर है, देखिए। तो ये बच्चे थे ना, 5 years, 13 years, 10 years। ओके, तो अगर आपको एज ऐसा भी कर ले सकते हो।
ठीक है, तो उसको यानी मतलब आप कन्वर्ट कर लेके ये भी कर ले सकते हैं। तो इनफैक्ट यानी वो एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लो आप मंथ्स का, या इस तरह से चेक कर लो, तो ये डिवाइडेड बाय 12 तो ये एज है, तो वो तो कंफर्म्ड है कि मतलब ये दिस आर द किड्स। अभी कभी हमारे को जब ऐसा डेटा सेट दिया जाता ना, एंड ऑन दिस गिवन डेटा सेट वी हैव टू बिल्ड अ मॉडल, एक क्लासिफिकेशन का मॉडल बनाना है हमको, प्रिडिक्ट करना है। तो इसके वेरिएबल्स क्या है, ये हमारा टारगेट वेरिएबल है, ये whether this particular complication disease whether it is absent या present, given this age, number और start। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा जाके एक्सप्लोर करें ना, गूगल में हम लोग देखते हैं तो आपको मिलेगा काइफोसिस डेटा सेट। ओके, पहली बात तो व्हाट इज एग्जैक्टली काइफोसिस का आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। डू यू सी दिस पिक्चर, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको पिक्चर गूगल का? Yes. ये प्रॉब्लम होता है, देखिए, दिस इज रिलेटेड टू दी बैकबोन कर्वेचर, यानी तो ये इस तरह का, यानी पर ये देखो आप, ये कर्व रहता थोड़ा, मतलब तो ये दिस इज द कॉम्प्लिकेशंस। ओके, तो ये वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट इस तरह का यानी बैक प्रॉब्लम है क्या। और ये काइफोसिस का डेटा यहाँ पर है, आपको अलग अलग यानी जगह मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे, देखिए एज कै में है, ये मंथ्स में है, और इसके कॉलम का नाम क्या है, स्टार्ट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा, और NUM यानी दिख रहे हैं ना आपको, ये नंबर, ये नंबर जो है दो फीचर है इंपॉर्टेंट, नंबर और स्टार्ट। तो नंबर मतलब स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग वर्टिब्रा, और नंबर मतलब नंबर ऑफ वर्टिब्रा। तो ये दो फीचर और एज के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि काइफोसिस है नहीं। काइफोसिस की वैल्यू 1 मतलब यस, 0 मतलब एब्सेंट, नो। बट यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट कैटेगरिकली 6 मतलब। तो ये डेटा हम समझ गए, एंड नाउ बेस्ड ऑन दिस विल अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, एब्सेंट है, तो गिवन दिस एज एंड नंबर 3 एंड ये नंबर ऑफ वर्टिब्रा और स्टार्टिंग, ये तो ये नहीं है बोला। बट प्रेजेंट का मतलब ये देखिए, जब ये 4 वैल्यू आ रही और ये 5 आ रही, तो इसका मतलब यहाँ पर बोल रहा है ये प्रेजेंट है यार। तो हम लोग एक मॉडल बनाएंगे, हम लोग डिसीजन ट्री मॉडल बनाएंगे, उसको फिर ensemble मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, विच इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ मॉडल बोल रहे हैं हम लोग। ओके, यानी हम लोग एक क्या करेंगे, हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे हम लोग। ओके, तो पहले एक सिंपल मॉडल अगर हम बना रहे हैं, तो कौन सा मॉडल बना है, डिसीजन ट्री। तो लेट्स बिल्ड डिसीजन ट्री क्लासिफायर, डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो हम लोग डिसीजन ट्री क्लासिफायर बनाएंगे। ओके, एंड यू पीपल नो वेरी वेल द स्टेप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, काइफोसिस डीएफ, हमारा एक्स में क्या आएगा, मतलब एक्स में यू नो दैट एक्स में क्या, एक्स में पूरे कॉलम आएंगे एक्सेप्ट क्या आएगा, Except kyphosis. ये टारगेट एक्सेप्ट काइफोसिस। तो वी कैन जस्ट टेक इट लाइक दिस आइडिया, बाय गिविंग से इसको ड्रॉप कर दो काइफोसिस को, और टेक एवरीथिंग, एंड देन यू हैव टू गिव एक्सेस इज इक्वल टू 1, and then in the y only we will have the target, which is nothing but the kyphosis. So once you define xy, you know very well, उसको यहाँ पर हम लोग split करेंगे। तो we will split the data into train and test sets, and you know very well उसके लिए from हमको function import करना पड़ेगा from sklearn dot model selection, right? Model Yes. selection import Trend test split. ट्रेंड टेस्ट। ये आप लोग देख देख के पूरा याद हो गया होगा आप लोग को, खाली देख देख के याद हो गया होगा, प्रैक्टिस तो दूर की बात है ना। एक्सट्रेन Comma white train. ये भी याद होगा नहीं, एक्सट्रेन पहले एक्सटेस्ट, एक्सट्रेन एक्सटेस्ट, X test or white train, white test. वाई टेस्ट। तो यहाँ पर फंक्शन है हमारा ट्रेन
टेस्ट स्प्लिट, और यहाँ पर दे दो एक्स वाई। टेस्ट को कितना देना है, टेस्ट का साइज कितना देना है, 0.30 30 देना है, 25 देना है, क्या देना है, 25. 25, Yes. 25%. अब नाउ वी हैव टू ट्रेन द मॉडल। उससे पहले ऑफ कोर्स इनिशियलाइज करना पड़ेगा मॉडल को, इनिशियलाइज द मॉडल। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, काइफोसिस मॉडल बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे डिसीजन ट्री। ऑलरेडी हमको ये मॉडल को अच्छा, इससे पहले हमको क्या करना पड़ा, एल्गोरिथम इंपोर्ट करना पड़ेगा। यस, तो इंपोर्ट दी एल्गोरिथम। चलिए बोलिए, डिसीजन ट्री जो एल्गोरिथम है कहाँ से आएगा, वो कौन से लाइब्रेरी से आएगा, फ्रॉम sklearn. उसका सब मॉडल का नाम क्या है, सब मॉडल का नाम ट्री है। इंपोर्ट Decision tree. यहाँ पर भी दो है, हम कौन सा लेंगे, Classifier. तो विल टेक क्लास। क्लासिफायर। चलिए यहाँ पर है, देखिए डिसीजन इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग डिसीजन। यहाँ पर इट्स ऑलवेज गुड प्रैक्टिस टू गिव मैक्स डेप्थ, एटलीस्ट एक दे देना चाहिए। ओके, मैक्स डेप्थ अगर आपने दोगे तो वो डाउन में कितना, एक मैक्स डेप्थ समझिए आप, एक यहाँ पर हम लोग 3 देते हैं। ओके, इस पर थोड़ा सा, तो वो कौन से लेवल तक जाएगा वो, ओके कितने लेवल। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन दी मॉडल। तो काइफोसिस Model.fit. या आप एक्स ट्रेन दे दो और Y train. वाई ट्रेन। ये हमारा मॉडल, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग चेक करना है, काइफो। और है क्या सर? चलिए मॉडल हमारा ट्रेन हो गया, मॉडल हैज बीन ट्रेन्ड एंड नाउ यू नो वेरी वेल वी हैव टू डिफाइन वाई प्रेडिक्शन। तो यहाँ मतलब हम लोग टेस्ट करेंगे विद टेस्टिंग डेटा है, मतलब ओके, टेस्ट द मॉडल विथ टेस्ट डेटा के साथ। और यहाँ पर यू नो दैट हमारा मॉडल का नाम है काइफोसिस मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पर हम लोग चलिए अब नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मॉडल प्रिडिक्शन हो गया। आप क्या करते हैं, Evaluate the model. Evaluate. model evaluation. Now we have to evaluate the model and the best way to evaluate the model is by looking at the metrics. तो हमारे पास दो मेट्रिक्स देखते हैं हम लोग, राइट? क्या क्या देखते हैं यहाँ पर, Classification report. क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो फ्रॉम कहाँ से आएगा वो, sklearn dot matrix. गुड मैट्रिक्स। इंपोर्ट, यहाँ पर आप Classification report. क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। चलिए नाउ हम लोग मॉडल की एक्यूरेसी चेक करते हैं। प्रिंट, पहले क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को देखेंगे। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में हमको क्या पास करना पड़ेगा, एक्चुअल एंड प्रेडिक्शन, वाई प्रेडिक्शन। we got, oh my goodness, only 50 के ऊपर ही है, just above 54. Okay, just above 54. And now we have to give the same thing. अब हमको देखना है कि एक्चुअली कितने फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव है, तो उसके लिए हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेक करते हैं ना। Yes. तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हम लोग चेक करते हैं, ये सेम देना पड़ेगा आपको। हाँ, तो यहाँ पर ये जो डायगोनल लाइन है 12 और 0, ये है ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव विच इज गुड, बट ये ऑफ डायगोनल है, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, टोटल 9 गलतियां हैं, मिस्टेक है, राइट? तो जो टोटल टेस्ट का डेटा कितना है, 9 प्लस 21 रिकॉर्ड्स है। 21 में 12 इज राइट एंड 9 रॉन्ग, तो रॉन्गली वो प्रिडिक्ट करा वो, दैट इज अ एरर, ये एरर है हमारा इतना। तो ये एक सिंगल हमारा मॉडल है, एक सिंगल मॉडल,
ओके, एक हमारा सिंगल मॉडल है, ठीक है। हम लोग इसको अगर डेप्थ को 5 भी करते हैं, 5 करें हैं, तो देखिए बढ़ गया ना, पहले कितना था 54। 73। देखिए ये देखिए, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग, जो बोले ना पैरामीटर। सर ये डेप्थ है क्या एक्चुअल सर, डाटा की डेप्थ है या डाटा में तो सर हमारे ज्यादा मतलब ये नहीं है लेंथ उसकी, अभी देखे हमने। नहीं, डेप्थ का नहीं, डेप्थ डेटा यहाँ पे 1 मिनट में समझाओ। यहाँ देखो स्क्रीन, देखो आप, कैन यू सी द स्क्रीन? यस दिख रहा है आपको? यस। ये डिसीजन ट्री इस तरह से काम करता। ओके, ये दिस इज द वे डिसीजन ट्री वर्क्स। तो पहला जो सबसे पहले रहता रूट है, उसके अंदर स्प्लिटिंग होके क्या होता है, ये डिसीजन नोड्स आते हैं। ओके, तो यानी जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर ये क्राइटेरिया है, ये गिवन है, तो दिस इज कैफिस प्रेजेंट और एब्सेंट। तो ये एग्जांपल तो खैर इसके ऊपर है कि आउटलुक क्या है आपका, सनी है, रेन है, ये दो में वैल्यू में स्प्लिट हो रहा है। अगर सनी है तो देन इट इज फर्दर चेकिंग वेदर ह्यूमिडिटी इज लेस देन इक्वल टू 75 और ग्रेटर देन 75, या रेनी है तो क्या है। तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल 1 लेवल 2, इसको बोलेंगे डेप्थ। ओके, इसको बोलेंगे डेप्थ। तो कितने लेवल, अगर आप अनलिमिटेड बोले तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता, मतलब, और कम दिए तो भी यानी अंडर फिटिंग हो जाती है। तो उसकी प्रॉपर वैल्यू हम लोग ट्यूनिंग में डिस्कस करेंगे। तो ये एक वन ऑफ द हाइपर पैरामीटर है। क्या है हाइपर पैरामीटर का नाम? मैक्स डेप्थ। मैक्स डेप्थ। तो ये मैक्स डेप्थ हम लोग इतना दिए, तो हम लोग मैक्स डेप्थ आप ही देखिए कि मैक्स डेप्थ जैसा हम लोग इम्प्रूव बड़ा मैक्स डेप्थ वो करें तो द परफॉर्मेंस गॉट लिटिल बेटर। यस। तो ये एक हो गया। और इसमें एक और एक चीज क्या थी, यानी मतलब ये सॉरी एक मिनट। सर डेप्थ को और बढ़ाए तो परफॉर्मेंस और बढ़ जाएंगे यहाँ पे। हाँ, आप टेस्ट कर सकते हो उसको, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, यू हैव टू टेस्ट इट। तो अभी हम लोग 5, अभी अभी इसको 5 आप करके देखिए। 5 मैं 5 ही रख रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसके नहीं है, हमारा इंटरेस्ट एंसेंबल मॉडलिंग पे है। बट आप ट्राई कर सकते हैं। और ये कितना कर ये कितना आ गया, 73 आ गया। और एरर को चेक करो आप, 9 था टोटल, 9 से जाके कितने कम हो गया, 7 हो गया। 7 हो गया। 7 हो Yes, गया। sir. ओके, तो नाउ हम लोग करेंगे, नाउ विल गो फॉर रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट क्या है, अभी जैसा पता था, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग ऑफ मॉडल, ऑनसम्बलिंग मॉडल, ऑनसम्बल, उसको ऑनसम्बल बोलो, यानी ग्रुप। तो मल्टीपल मॉडल को लेके, ओके। अभी जैसा थ्योरेटिकली हम लोग डिस्कस करें ना, ऑनसम्बल मॉडलिंग क्या होती है, मतलब तो सर ये मोड लेता क्या ये इसमें से रैंडम डिसीजन इसमें से सर ये? यानी मल्टीपल डिसीजन ट्री से इज टेकिंग द बेस्ट कंबाइनिंग रिजल्ट, जैसा अभी हम लोग यहाँ पर करे थे, बोले थे। ये देखो आप, ये पढ़ो। Random forest is a type of decision tree algorithm that construct a large number of trees and combine their prediction to make a final prediction. प्रेडिक्शन। तो कंबाइन कर रहा है, मतलब इट इज अ कंबाइनिंग द प्रिडिक्शन ऑफ मल्टीपल ट्री। अभी हम लोग जो मॉडल बनाए, ये कितने इसमें कितने डिसीजन ट्री है, ये कितने हैं? एक ही है ना ये। एक है सर वो। अब एक से ज्यादा बढ़ के कर सकते हैं आप रैंडम फॉरेस्ट से आप। तो नाउ लेट अस, पहले हम लोग को रैंडम फॉरेस्ट में क्या करना पड़ता है मालूम आपको? तो पहले आपको इंपोर्ट द एल्गोरिथम, इंपोर्ट द एल्गोरिथम। हमारे पास डेटा सब है, तो फ्रॉम सेम sklearn डॉट, इसका जो सब मॉड्यूल है उसका नाम है ensemble, क्योंकि ये ensemble टेक्निक है ना पूरे, तो ये ensemble। इंपोर्ट क्या करेंगे हम लोग, रैंडम फॉरेस्ट। और रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट में भी दो है, देखिए कौन सा यूज करेंगे हम लोग, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर और क्लासिफायर। अब यहाँ पर हमको क्लासिफायर करना पड़ेगा। ओके, फिर हम लोग एक और एक है, वो है ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लास रिग्रेसर क्लासिफायर, सॉरी, ये ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो अभी हम लोग दो के बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। एक था रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग। ग्रेडियंट बूस्टिंग टेक्निक क्या करता है, उन्हें सीरीज ऑफ डिसीजन ट्री, ईच वन ट्राइंग टू इंप्रूव द एरर्स ऑफ द प्रीवियस वन। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। यहाँ पर पूरों को कंबाइन कर रहा, इन्हें क्या कर रहा है, एक मॉडल ले रहा, दूसरा मॉडल उससे बेटर बनाना, तीसरा मॉडल उससे बेटर इंप्रूव कर रहा, एवरी लेवल पे उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की, एरर मतलब इंप्रूव दी एक्यूरेसी। तो दिस इज हाउ द ग्रेडियंट बूस्टिंग वर्क्स। तो खैर इसके थ्योरी हम लोग बाद में, प्रैक्टिकली आप चेक करो, देखो कैसा बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग ये एल्गोरिथम डिस्कस करने के बाद सेम स्टेप्स है, उसको फिर आप इनिशियलाइज कर लेना पड़ेगा,
इस डेटा एवरीथिंग रेडी है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर नाम दीजिए यानी काइफोसिस है ना, ये हमारा मॉडल, यानी काइफोसिस मॉडल रैंडम फॉरेस्ट दे दो मैं इसको। ओके, यू कैन मेक सम अदर बेटर नेम आल्सो। और यहाँ पर हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे रैंडम फॉरेस्ट। अब रैंडम फॉरेस्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्या बोलना चाहिए, जो हाइपर पैरामीटर है, तो कितने ट्री पे बनाना है आपको। अब इसके ऊपर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ ट्यूनिंग। तो कितने ट्री बनाना है, तो इसको यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आपको वो याद है एन एस्टिमेटर। तो मैं 20 का बनाएंगे हम लोग। आप 10 से स्टार्ट करो, आप 10 से करो, 10। दैट इज द नंबर ऑफ ट्रीज, एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रीज। तो एक फॉरेस्ट में 10 ट्रीज, 10 मॉडल, 10 यूज करेगा लेगा वो। एंड द रेस्ट आर सेम, एक्चुअली इनिशियलाइज हो गया। फिर आप ट्रेन करो, आप सिंपल। तो काइफोसिस मॉडल आरएफ डॉट ट्रेन करने के लिए आप सेम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, एवरीथिंग सेम दिस। ओके, एक मिनट स्पेलिंग। डॉट फिट देना पड़ेगा सर, कि ट्रेन ही रहता है इसमें? नहीं, फिट ही देना पड़ेगा, करेक्ट, फिट ही देना पड़ेगा। मैं वो डॉट फिट। ओके, सेम सॉरी, मैं वो सेम, नो चेंज। तो ट्रेन हो गया मॉडल। ट्रेन होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, प्रिडिक्शन, राइट, टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग। तो ये प्रिडिक्शन का नाम हम लोग ये वाई प्रिडिक्शन दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये वाई है, आउटपुट है वाई प्रिडिक्शन। यहाँ पर मैं इसको अलग करने के लिए आरएफ दे देता हूँ मैं, रैंडम फॉरेस्ट। मॉडल का नाम क्या है, काइफोसिस मॉडल आरएफ डॉट प्रिडिक्ट, सेम स्टेप से। यहाँ पर क्या देते हैं हम, एक्स ट्रेन, ओ आई एम सॉरी, या गुड सॉरी, एक्स क्या देते हैं, एक्स ट्रेन दिए तो बहुत अच्छा रहता है। एक्स टेस्ट देते हैं हम लोग, राइट, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग का डेटा अलग है और टेस्टिंग का डेटा अलग है। तो हम लोग एक्स टेस्ट देते हैं, टेस्ट। तो हम जो टेस्ट का डेटा यूज करके हम लोग टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए, अभी हमारे पास ये आ गया। अब नाउ इसकी हम लोग क्या करते हैं, इसको इवैल्यूएट करेंगे। नाउ वी विल इवैल्यूएट। तो अब इवैल्यूएट करने के लिए सेम 2 मैट्रिक चेक करना पड़ेगा आपको। एक है यानी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और दूसरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो पहले आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखो आप। तो प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में आप क्या देते हैं जनरली, वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शन। क्या देना है यहाँ पर, अंडरस्कोर आरएफ देना है यहाँ पर, करेक्ट। तो लेट मी रन दिस। इसका कितना है देखो, ओ कम आया बहुत, क्योंकि मे भी हो सकता है ये जो है ना हमारा को, ये इसमें थोड़ा 10 लिए थे ना सर अपन। तो अब मैं इसके डिसीजन ट्रीज को आप, यानी इसको आप क्या करूँगा, मैं इसको 30 देता हूँ, मैं 30। अब हम लोग पहले एक रैंडमली डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल हैव मोर डिस्कशन ऑन इट। 54 से बढ़ के कितना हो गया देखो, 67। ओके, 67 हो गया। अगर हम लोग एक 50 ट्री से ट्राई करेंगे, 50 ट्री से ट्राई करेंगे, 67 आ गया था ना, मगर वो अब मतलब इसका मतलब ज्यादा बड़ा है, तो भी क्या हो रहा है, देखिए इट्स गोइंग कम हो रहा सर, परफॉर्मेंस डाउन। हाँ, ज्यादा ट्री इज आल्सो, टू मेनी ट्री इज आल्सो नॉट गुड। तो व्हाट वी टुक 30, राइट। इससे पहले कितने लिए थे हम लोग, व्हेन द परफॉर्मेंस वाज गुड, 30 लिए थे, 30 लिए थे, 20 लिए थे। लिए थे सर, 30। It was 30, right? Okay, initialize the model, train the model, X train, Y train, and go for testing. And let's check the class. Somehow it is not going up. तो उसको एरर भी चेक कर लेंगे हम लोग। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में भी आप यहाँ पर Y टेस्ट एंड Y predictions RF। अब यहाँ पर देखिए कितने रॉन्ग, -8, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव 8 है। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स 8 है, टोटल 21 है।
इससे पहले 24 थे ना सर? 24 कहाँ है? 24 थे ऊपर, अपन ने टेस्ट करे थे तो। ये देखो आप, इतने थे इतने चले 21 ही थे ना, क्योंकि सर। टोटल रैंडम फॉरेस्ट से अच्छा तो अपने को सर डिसीजन ट्री में रिजल्ट मिला सर, ये डाटा सेट के साथ में हाँ 74 तक गया उसमें। नहीं, रैंडम फॉरेस्ट कभी कभी सी, कभी कभी इंडिविजुअल ट्री का भी अच्छा रहता। तो रैंडम फॉरेस्ट में अभी मैं आपको, देयर आर सो मेनी हाइपर पैरामीटर विच वी हैव टू गिव, विच आई एम नॉट राइट नाउ डिस्कसिंग, वो ट्यूनिंग में डिस्कस करेंगे। तो वो हाइपर पैरामीटर एक ही यूज करें हम लोग, एस्टिमेटर रेटिंग बोल के रहता, मतलब ये लर्निंग रेट है, एंड देयर आर अदर हाइपर पैरामीटर्स आते हैं। सो विल ट्राई दोज हाइपर पैरामीटर्स सेपरेटली लेटर, हम लोग हाइपर पैरामीटर देखे, विल ट्राई टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी। अभी अब जैसा कि अगर आप यहाँ पर एक ही ओनली बेस्ड ऑन ट्री, ओके बेस्ड ऑन ट्री, तो वो ये देखिए, तो जितना बढ़ेंगे तो वो कहाँ पर आके रुक जा रहा हूँ, 56 पे ही रुक रहा। ओके, तो अगर मेरे डेस्टिनेशन 15 अगर मैं देता हूँ मैं, तो देखिए 20 से कम आना, मतलब ये अच्छा है। 20 से कम, तो सिर्फ 5 रॉन्ग हो गए, पॉजिटिव मतलब फॉल्स, पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव भी कम हो गए, 5 हो गए, और ये एक्यूरेसी भी बढ़ गई आपकी। तो अब हम लोग इसके अगेंस्ट में एक और एक देखेंगे, ग्रेडियंट बूस्टिंग। ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या करता, इन्हें क्या कर रहा था, रैंडम फॉरेस्ट पूरों को लेके पड़ रहा एरर था। कम करता ग्रेडियंट। नहीं, पहले जैसे ई मतलब क्या है, ग्रेडियंट बूस्टिंग इज अ टेक्निक दैट क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ डिसीजन ट्री, ईच वन ट्राइंग टू इंप्रूव द एरर ऑफ द पास प्रीवियस वन, previous one, the प्रीवियस ट्री। past one, या past one, the previous one। इसकी टेक्निक अलग है, तो ये टेक्निक को भी अप्लाई करके देख लेना हम लोग। तो हम लोग अब ग्रेडियंट बूस्टिंग पे देंगे। तो आपको क्या करना, पहला स्टेप क्या है, एवरीथिंग रेडी, इंपोर्ट दी एल्गोरिथम। सर ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया अपन, अच्छा, वो गुड गुड, ग्रेडियंट सेम टाइम ग्रेडियंट बूस्टिंग कर लिए थे ना, दोनों ये आ कर गया। लिए सर हम। ये ग्रेडियंट बूस्टिंग, ओके, आप बाद में भी कर सकते थे। तो इसका मतलब इंपोर्ट है, तो क्या कहाँ से जाएंगे स्टेप, यानी इनिशियलाइज। इनिशियलाइज, ये देखिए, आप उसका नाम दीजिए, यानी अब हम लोग क्या नाम दिए थे, काइफोसिस मॉडल, जीबी ग्रेडियंट बूस्टिंग। नहीं काइफोसिस मॉडल, या जीबी दे देंगे, करेक्ट। आरएफ दिए थे यहाँ पर, जीबी ग्रेडियंट बूस्टिंग, ठीक है। और इसमें भी मैं अभी कोई हाइपर पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ मैं, इसके अंदर भी आपको नंबर ऑफ ट्रीज को ही देना पड़ेगा, मतलब ओके। तो यानी मतलब अगर आप नहीं दिए तो वो भी डिफॉल्ट वैल्यू लेगा वो। इनफैक्ट इसमें तो हम लोग कुछ भी नहीं देते हैं अभी। सर आर नहीं हो क्या सिफार? चलिए, इसके बाद की स्टेप आपको पता है क्या करना है, ट्रेन करना है ओके। तो अभी कैसे करेंगे हम, काइफोसिस काइफोसिस मॉडल जीबी डॉट डॉट फिट एक्स ट्रेन एक्सप्लेन वाई ट्रेन, ओके एक्सट्रेन। और उसके बाद हम लोग को टेस्टिंग करना था यूजिंग प्रेडिक्शन, काइफोसिस मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और वेरिएबल को लगाना पड़ेगा ऑफ कोर्स एक्स। सर मॉडल अंडरस्कोर जीबी लेना पड़ेगा सर। हाँ करेक्ट, और मॉडल जीबी है, और वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा ना। तो वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पर, हमारा वेरिएबल का नाम है, सर वो भी हो गया। सर बीची ले लिया आपने? हाँ प्रिडिक्शन वाई जीबी, यहाँ पर भी नहीं चेंज, सर, हाँ ठीक है। ये आ गया। अब ये रिजल्ट आया, और इसका रिजल्ट कहाँ स्टोर करेगा, ये वेरिएबल में डालेगा। अब हमको चेक करना है मॉडल इवैल्यूएशन, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में आप दो एक्स टेस्ट तो सेम है पूरों के साथ, चेंज होगा यहाँ पर प्रिडिक्शन में क्या, जीबी, ये है ना। सर वाई टेस्ट लेना पड़ेगा ना सर। एक मिनट, हाँ एक्चुअल क्या में डेटा है, वाई वाई एक्चुअल टेस्ट, डेटा क्या, वाई टेस्ट, और क्या है हमारा, वाई प्रेडिक्शंस वाई जीबी,
predictions YG. एक पैरेंथेसिस नहीं है सर। क्लोज क्लोज। किस पे गया इन्हें डायरेक्ट, एटलीस्ट इन्हें कहा 62 ओके 62। तो अब ये यानी मतलब इसका वो भी देख लेंगे हम लोग, एरर कितना है चेक करेंगे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स 8 तो यहाँ पर अब ओके, तो बेसिकली यानी हो रहा क्या बोले तो यानी अब यानी मतलब अब इसको हम लोग को नेक्स्ट हाइपर पैरामीटर्स पे देखें। लेकिन अगर आप एटलीस्ट कंपेयर करें नॉर्मल, अब इसके अंदर हम लोग ऑफ कोर्स एस्टिमेटर बढ़ा दिए थे हम लोग, अब इसमें भी आपको एस्टिमेटर देना ही पड़ेगा आपको। ओके, तो वो देखे भी आप चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग ये पूरों को कंपेयर करें। पहले एटलीस्ट एक मॉडल कैसा बना रहे आप, एल्गोरिथम कैसा ले रहे, और ग्रेडियंट बूस्टिंग और रैंडम फॉरेस्ट, ये क्या है, ये ग्रुपिंग मॉडल है, कॉन्सेप्ट ग्रुपिंग मॉडल, जैसा मैं यहाँ पर थ्योरेटिकली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा मैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे बोले ensemble modeling works by combining the prediction of multiple models to improve the accuracy and reduce overfitting। overfitting मॉडल को ओवरफिट यानी ट्रेनिंग में ज्यादा अच्छा सीख ले रहा, टेस्टिंग में मेकिंग मिस्टेक वैसा नहीं होने देने के लिए अच्छा रहता है। तो हम लोग अभी एडाबूस पे नहीं है, हम लोग एडाबूस पे नहीं है अभी, हम लोग रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग का एकदम बेसिक लेवल देख रहे हैं हम लोग। ओके, अब इसके बाद यानी नेक्स्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट देना मेरे को, फिर कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट। ओके। ओके, तो अब यहाँ पर अभी इस पे अब पूरा यानी मतलब मेन क्या रहता, मतलब अब यानी इसके पूरे टोटल हाइपर पैरामीटर्स का ही मेन गेम है। ओके, मैं आपको एक छोटा सा, क्योंकि मैं ये ट्राई करा, मैं आप लोगों को एक दे रहा हूँ कि अडाबूस आप लोग ट्राई करो, अडाबूस आप लोग ट्राई करो। अच्छा, यहाँ पर भी हम लोग को क्या देना चाहिए था, हम लोग को हाइपर पैरामीटर में व्हेन वी आर बिल्डिंग दिस ग्रेडियंट बूस्टिंग, तो ग्रेडियंट बूस्टिंग में भी हमको क्या देना है, एस्टिमेटर। वेरी गुड, क्योंकि इसमें भी क्या है यानी मतलब ये बोलना चाहिए ना, वो डिसीजन ट्री यूज करा था रूबी। तो मतलब उसको ट्रीज देना पड़ेगा ना। तो हम लोग Yes. पहले में दिए तो कितना अच्छा इंप्रूव हुआ था, परफॉर्मेंस कितने दिए थे हम लोग रैंडम फॉरेस्ट में, 15 पे परफॉर्मेंस अच्छा आता था। तो मैं इसको 15 ही देते हम लोग। ओके, और इसके सी देयर आर इवन अदर पैरामीटर्स, हाइपर पैरामीटर्स है विच विल डिस्कस लेटर। अभी यहाँ पर हम लोग ये जो ग्रेडियंट बूस्टिंग को मैं फिर से रन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फिर से टेस्ट कर रहा हूँ मैं, और लास्ट टाइम हमारे को ये नहीं दे रहा था, 62 दिया हमें एक्यूरेसी। अब एकदम इसमें ये देखिए इसका बिहेवियर अलग है, देखिए 55 हुआ, तो उसके Yes. साथ आप थोड़ा 20 करके देखो ना सर, 20 पे ज्यादा उसको दिया था। यू हैव टू ऑफ कोर्स, आप अलग अलग ट्राई करना पड़ेगा आपको, यानी दिस इज ऑल।
मॉडल बिल्डिंग आप लोग देखे होंगे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पर जाता बोले तो हमारा ये ट्यूनिंग में और यानी पूरा एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। ओके, क्योंकि आपको हर चीज एक एक मरतबा मल्टीपल टाइम्स में देखना पड़ेगा, मतलब तो इसको आप एक लूप में डाल के भी चेक कर सकते हैं अलग अलग, और देयर आर अदर टेक्निक्स आल्सो देयर। ओके, अच्छा जी, नंबर ऑफ ट्रीज जो उसमें काम कर रहे, क्या में काम कर रहे, रैंडम फॉरेस्ट में कर रहे, इसके अंदर इसका बिहेवियर अलग रहेगा, उसका बिहेवियर अलग रहेगा इसका, क्योंकि इन्हें क्या कर रहा, हर एक प्रीवियस मॉडल को एरर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है इसमें। तो द वे इट इज वर्किंग इट इज डिफरेंट, एंड द वे रैंडम फॉरेस्ट इज वर्किंग, दिस इज ग्रेडियंट बूस्टिंग, एंड द रैंडम फॉरेस्ट इज गोइंग टू कंबाइन फ्रॉम ऑल मल्टीपल। इन्हें क्या कर रहा, प्रीवियस पे डिपेंड कर रहा। तो अगर हम जैसा बढ़ाए तो मैं क्या इंप्रूव हुआ, देखिए थोड़ा क्या हुआ अपना, तो उसको और आप 100 200 आप लोग पूरा बैठ के करो, आप लोग यू स्पेंड टाइम एंड डू दिस। इनफैक्ट हम लोग तो उसकी बात करेंगे। जैसा कि मैं बोला डिसीजन ट्री है ना ये, तो डिसीजन ट्री में और एक भी बहुत इंपॉर्टेंट बोला मैं आपको, क्या है बोलो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आई टोल्ड यू, डेप्थ है सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें क्या रहता मतलब, यानी मैक्स डेप्थ, मैक्स डेप्थ। तो मैक्स डेप्थ हम लोग कितना दिए थे, 5। ओके, देखो यहाँ पर एक्सेप्ट करा दो, ये इसको बोलेंगे हाइपर पैरामीटर। तो यू विल हैव टू रियली प्ले विद वेरियस हाइपर पैरामीटर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके, फिर देन यू, अब जैसा कि यहाँ पर 62 बताना उन्हें, मगर खैर ये उसका खैर उसको देखना पड़ेगा, डेप्थ में मे बी यू प्रॉब्ली यू विल हैव टू ऐड मोर, बट यू हैव टू प्ले विद दिस हाइपर पैरामीटर, एस्टिमेटर, डेप्थ। ओके, कभी आपको एस्टिमेटर कम करके डेप्थ को अगर इंक्रीज करे तो आएगा। डेप्थ का मतलब तो मालूम होगा कि कितने लेवल तक जाएगा वो, तो हाउ मेनी यू नो लेवल्स इट इज अप्लाइंग द कंडीशन है, मतलब तो वो लेवल है, मतलब वो। तो ये हाइपर पैरामीटर किसको बोलते हैं, एटलीस्ट आइडिया आ गया आपको, लेकिन यू नीड टू यू नो एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट पैरामीटर्स विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। इसमें क्या है मालूम, यानी देयर इज नो हार्ड एंड फिक्स रूल कि ये इतने दे दो तो परफॉर्मेंस इतना अच्छा आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग डेटा पे, और यहाँ पर हमारे पास आपको डेटा भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा। हमारे पास डेटा भी ज्यादा नहीं है यहाँ पर, वी हैव लिमिटेड डेटा, इवन टेस्टिंग का डेटा भी बहुत कम है, और ओवरऑल डेटा भी आप कितना देखिए, आप चेक करें, आप ओवरऑल डेटा कितना था हमारा, लास्ट 74 कुछ था सर, वो रो नंबर। एटी वन है टोटल, 81 रिकॉर्ड्स, सी ओनली 81। यस, और 81 में भी हम लोग कम कर दिए ना, 81 में हम लोग यानी किसको के ज्यादा, यानी उसको ट्रेनिंग का कितना डेटा है, ट्रेनिंग का एक्स एक्स ट्रेन, उसमें से भी हम लोग 21 उसको दे दिए, तो इसका 20 कितना देते हम लोग, नहीं ओवरऑल आई थिंक 25 दिए थे सर। 25, हाँ 25, तो वो 25 जाके ये हो जाएगा 81। तो यानी ट्रेनिंग में ओनली 56 रिकॉर्ड्स है, देखो आप बहुत कम डेटा है, मतलब तो इट नीड्स Yes. मोर एग्जांपल्स, द नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर ओनली 56, तो वो भी एक रीजन है। एंड फिर अलग अलग यू नो डू वी नीड टू ऐड सम मोर वैल्यूज, और अब इसके अंदर और भी थोड़े टेक्निक होते हैं ना, डोमेन नॉलेज जो बोलते हैं हम लोग, डेटा नॉलेज, बिजनेस का नॉलेज, देयर इज समथिंग कॉल्ड फीचर इंजीनियरिंग, फीचर इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस है। ओके, तो आप ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को, पॉज हो गया क्या? हाँ सर, पॉज हो गया सर, वही बोलना चाह रहा था मैं भी। नहीं, मेरे ये को ग्रेडियंट बूस्टिंग इनिशियलाइज स्क्रीन दिख रहा है सर, वही सेल दिख रहा है। दिख रहा है सर। एक मिनट, हाँ मैं ओके, तो यहाँ पर देख रहे थे हम लोग टोटल कितना है 81, और ट्रेनिंग का 56 है। तो आप लोग एक काम करो, यानी आप लोग ये इसको ट्राई विथ डिफरेंट अदर डेटा सेट। अभी हम लोग ये काइफोसिस पे करें ना हम लोग, तो यू ट्राई टू बिल्ड ऑन यू नो अदर डेटा सेट, आपको कई डेटा सेट तो है आपके ऑलरेडी,
कैंसर का डेटा सेट एक है, और इधर अदर डेटा सेट्स आर देयर, ओके, हाउसिंग का डेटा सेट पे, या अदर डेटा सेट देखो जहाँ पर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है. So now the next part I'm going to explain you about AdaBoost. आप AdaBoost के लिए मैं आपको एक असाइन आपको बोल रहा हूँ मैं, यू ट्राई AdaBoost. हाँ, चलिए मैं आपको टोटली आप ट्राई करो AdaBoost, एटलीस्ट बिल्ड अ मॉडल यूजिंग AdaBoost. और फिर हम तीनों एल्गोरिथम के तीनों के बारे में बात करेंगे, तीनों मॉडल एंसेंबल मॉडल, ओके, विच इज ऑल अबाउट क्या क्या आ जाएंगे मतलब इसमें, यानी AdaBoost है और ग्रेडियंट बूस्टिंग है और रैंडम, राइट, तीनों आ जाते हैं आपको. तो ऑफ कोर्स यानी उसके बाद फिर हम लोग उसके बारे में डिटेल डिस्कस कर सकते हैं. चलो आप यानी वो एक मॉडल है. फिर एंड देन आवर नेक्स्ट डिस्कशन विल बी ऑन दी ट्यूनिंग पार्ट, जो एटलीस्ट हम लोग एक 2-3 पैरामीटर जो देखे हम, बट विल डिस्कस अदर हाइपर पैरामीटर्स. ओके, तो रैंडम फॉरेस्ट में जैसा एस्टिमेटर है उसी तरह डेप्थ एक है, मैक्स डेप्थ है, एंड अदर पैरामीटर्स. यार मैं आप लोगों को चलिए